और जी नेक्स्ट क्वेश्चन, देन आई टेक अ स्मॉल ब्रेक। अभी वैसे अंधेरा तो बहुत हो गया, मगर यहाँ तो इंग्लैंड है, यहाँ तो अंधेरा ही रहता है। माई एक्सपीरियंस वर्किंग एट अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन द यूके, अ रियलिटी चेक। Dear Junaid Bhai, I hope you're doing well. I've been following your content for years, and I know you often ask why Pakistanis are rarely seen in the hospitality industry abroad. I wanted to share my first-hand experience, which might give you some insight. I moved to the UK for studies and was lucky to have friends who helped me settle. They have helped me find a job, which, in hindsight, I now regret taking. It was a Pakistani restaurant. I thought it would be a good starting point, but it turned out to be a nightmare. The owner offered to pay me £6 in cash when the minimum wage is £11. He made me do 5 unpaid trial shifts before officially hiring me. On my very first shift, after working tirelessly, he asked me to clean the drain in the kitchen. When I checked, it wasn't just a drain, it was practically a sewer. It was full of filth, and when I asked for gloves or equipment, he told me to remove my clothes and climb in, saying my clothes would get dirty otherwise. Later, I found out this was actually a plumber's job, and he would have had to pay 300 plus for it. I walked home that night in tears, wondering what I had gotten myself into. But that was just the beginning. He made me do things way beyond restaurant work. Washing his car in the freezing cold in January weather, running to his house to drop his kids to school before my shift, ironing his shirt and jacket, and even polishing his shoes while on the clock, delivering home cooked food from his wife's kitchen to his relatives. His kids were always at the restaurant, running here and there and poking fingers in food in the kitchen. Every single Pakistani student I've met here has a horror story about working for a Pakistani business owner. We think going to a fellow Pakistani will mean better treatment, but they exploit us to the worst. To any other Pakistani student moving abroad, do any job but never ever work for a Pakistani restaurant or shop owner. No amount of money is worth the humiliation and exploitation. Would love to hear your take on this, Junaid Bhai. I know you always talk about how Pakistanis should support each other, but when we go abroad, we prey on our own instead. This needs to be called out. Warm regards. So ये एक भाई हैं जो कि यूके आए और इनकी हॉरर स्टोरी है कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में उन्होंने नौकरी की जहां 11 पाउंड घंटे की वेज बनती है, वो उनको 6 पाउंड कैश में देते थे और रेस्टोरेंट के अलावा सारे काम करवाते थे। इससे मैं ट्रिगर हो गया और मुझे याद है अपने बहुत से दोस्त गोगलू की कहानी, जिसने एक सेठ के लिए काम किया था दुबई में तकरीबन 11-12 साल। अगर वो आपको हॉरर स्टोरीज बना, वो थेरेपी में आज भी डिस्कस करता है अपने उस बॉस को। सोचे उस बंदे ने इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट की उसकी लाइफ। बट आई एम ग्लैड ही इज़ आउट ऑफ इट। मगर उसका भी यही था कि उनकी जिस शॉप पे वो काम करता था उसके अलावा भी सारे काम, सुबह उठ के सारे अखबारों की जो है वो आईपैड दिया हुआ था उसको, सारे अखबार के कॉलम और ख़बरें स्क्रीनशॉट करके उनको प्रिंट करना, फ़ॉन्ट बड़ा करके, ताकि जब सेठ साहब आए तो उनके लिए अखबार रेडी हो। ओके, वो बनाना, बच्चों को स्कूल, ये जिस तरह आपने कहा है कि बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, खाना लाना ले जाना वगैरह वगैरह, एंड ही वुड पे हिम पीनट्स। और ये हाल रहा कि वो दुबई में रहा इतने साल, आई थिंक 11 साल उसने उसके लिए काम किया, एंड आई थिंक ही नेवर वेंट टू अबू धाबी। वो कभी अबू धाबी गया ही नहीं, क्योंकि 7 दिन काम कराता था वो। जिस दिन छुट्टी है, मार्केट बंद है, तो उस दिन नए काम निकाले हुए होते थे उसने। सो यस, हम सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी अपने आप को करते हैं, और फिर ये सबसे ज़्यादा नेकोकार भी यही लोग होते हैं ना। और अल्लाह अल्लाह करने वाले, और मतलब ज़ाहिर है धोखे देने होते हैं दुनिया को, तो ये लिबादा ओढ़ना होता है, इस्लामिक टच इसलिए हम रखते हैं ताकि लोग कॉल आउट ना कर सके, बोले यार हाजी साहब तो ऐसे दिखने में तो ऐसे ही लगते, तो वो इसलिए अपने आप को इस तरह दिखाते हैं। सो नॉट गोना, मतलब आई वोंट बी सरप्राइज टू नो कि ये भाई भी ऐसे ही होंगे। चूँकि ये खुद स्टूडेंट्स रह चुके होते हैं, उनको पता होता है स्टूडेंट्स कितने डेस्परेट होते हैं, तो ये सबको उसी रगड़े से गुजारते हैं। और इसका सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, पता नहीं गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि नहीं लेती। सेम केस फॉर इंडियंस। इंडियंस भी अपने नेशनल्स के साथ यही करते हैं, बिकॉज ज़्यादातर गुज्जू एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको पता होता है ये डेस्परेट है, ये तो काम करेगा, औने पौने भी करेगा, लॉन्ग आवर्स भी करेगा। सो प्रैक्टिकली वो स्लेवरी ही करवा रहे होते हैं। एंड आई थिंक यहाँ की गवर्नमेंट्स को ये चीज़ें पता हैं। इट्स अ लूप होल, क्योंकि उनको स्टूडेंट मनी भी तो चाहिए ना, तो स्टूडेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा लिमिटेड आवर्स में। तो ये अंडर द टेबल कैश वाली जो है, ये सबको पता है। कितना मुश्किल है यार यहाँ की मेट्रो पुलिस को
कबाबिश के छापा मारना भी, कितने लोग यहाँ पे लीगल हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, सबको पता है, सबको सब पता है। इकोनॉमी का पहिया घुमाने के लिए कुछ चीज़ों में आंखें बंद करनी पड़ती हैं। मतलब वही मैं क्या मिसाल दूँ, हाँ, न्यूयॉर्क का मैंने सुना था कि वहाँ पे टैक्सी का लाइसेंस लेना इज़ द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो इकोनॉमी का पहिया चलता रहे, इलीगल लोग आते रहें, वो कम पैसों पे काम करते रहें, ताकि इकोनॉमी की साइकिल चलती रहे। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है। आप कर भी दो कंप्लेन विसल ब्लोअर्स को, वैसे वो कुछ कहते नहीं है, इसलिए लोग जो है ऊबर ईट्स वगैरह करने को प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो सारा काम मशीनी है, सारा काम ऑटोमेटेड होता है, उसमें आपको कोई चीटिंग, हाँ प्लेटफॉर्म अगर आपको चीट करना चाहे वो करते हैं, जिसको ज़ाहिर है लोग कॉल आउट भी करते हैं, जैसे इंडिया में जोमेटो है, या बाइक स्विगी है बाइक, वो जो कुणाल कामरा के साथ जिसकी लड़ाई हो गई थी। सो वो एक अलग चीज़ है, बट ओवरऑल वो इतना एक्सप्लॉइड उस तरह वहाँ नहीं हो रहे होते, विच इज़ वाई दे प्रेफर टू डू दीज जॉब्स। यहाँ पे कोरियर कंपनीज में भी काफ़ी स्टूडेंट्स काम करते हैं, डीपीडी है यहाँ पे, दे पे रियली वेल, आई हैव हर्ड दैट। सो यस, अब आपने कहा कि उसके बच्चे रेस्टोरेंट में होते थे, तो अगेन क्लियरली दे वर नॉट स्टडिंग और स्टडिंग इनफ, और उन्होंने यही करना है। चिकन शॉप चल रही है बाप की, फ्री के इस तरह के स्टूडेंट स्लेव मिल रहे हैं, वो एक साइकिल चलती रहेगी, उनका बिजनेस का पहिया चलता रहेगा। सो आई एम नॉट सरप्राइज बेटा, रियली सॉरी टू हेयर अबाउट योर एक्सपीरियंस। और जैसा आपने कहा कि आप आंसुओं से रो गए थे उस दिन, जिस दिन उसने गटर साफ करवाया, 300 पाउंड वाला काम आपसे उसने फ्री में करा लिया। ऐसे ही होता है यार, ये ऐसे ही बस पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, तो बेटा ये सपोर्ट करते हैं जब आप फिर करते हो तो या नॉट इवन सरप्राइज। एंड पता नहीं ऐसे लोग रात को सोते कैसे हैं यार, मतलब इनका कोई ईमान नहीं होता, कोई इनको अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। डेड लोग होते हैं यार ये लोग, डेड लोग। अगर आपके अंदर ना इस तरह की फीलिंग आ रही है ना, तो आप खुशी मनाओ कि आप जिंदा हो, और आपके अंदर अभी भी इंसानियत है, और इंसानियत जिंदा है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, ठीक है समटाइम्स यू आर हार्ड ऑन योर सेल्फ बिकॉज यूर सेंसिटिव, और आपको बहुत चीज़ें फील होती हैं, बट एटलीस्ट आपको फील हो रही हैं, बिकॉज कोल्ड होने में और दिल बंद होने में टाइम नहीं लगता। एंड देन दीज पीपल, इस तरह के लोग जो हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, ये दे विल थ्रो एनी वन एंड एवरी वन अंडर द बस। जालिम लोग होते हैं ये। सो अगर आपका दिल इन चीज़ों पे दुखता है, आपको फील होता है, यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड फील लकी कि अल्लाह ने आज भी आपके दिल में वो शमा, सुन रही है शमा आंटी, रोशन की हुई है, कि आप अभी भी इंसान या इंसानियत के लिए दुख रखते हो, फील करते हो। तो ये बहुत अ, अ, किस्मत वालों को ही ये फीलिंग होती है। ये हर किसी, आजकल का जो दौर है ना बेटा, वो ऐसा है कि कोई किसी को कुछ नहीं समझता, वो बस एक रैट रेस में लगा हुआ है कि बस किसी तरह मैं आगे चला जाऊं, और उसमें उस परसूट में, अब वो मुझे अगर हाइपर कार चाहिए, और मुझे एक बड़ा सा 6 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, और ये मेरे गोल्स हैं ज़िंदगी के, तो वो उसमें अब जितने लोग मेरी ट्रेन के नीचे आ रहे हैं खल्ली वल्ली, वो उनकी किस्मत है, तो होने वाली है, बस मैं निकलता हूँ। तो बस उसमें कोई दीन ईमान नहीं है, और बस रोंदते हुए चले जाते हैं, जस्ट फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन। सो एज लॉन्ग एज कि आपके दिल में अभी भी दर्द है, दुख है, फील करते हो किसी के लिए, तो खुशी की बात है कि आप में आज भी इंसानियत ज़िंदा है, वरना आजकल इंसानियत का स्विच ऑफ होने में टाइम नहीं लगता। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कुछ खा पी के आते हैं, ताकि एनर्जी लेवल थोड़ा सा बूस्टेड हो जाए। सी यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।